Yes. Good morning. Good morning, all Good of you. Good morning. morning. Good morning, Good sir. Are you morning. clapping? morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning. Morning. Good Are morning. good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning. Every participant Morning. student Good clapping. Please morning. clap. Good Good morning. morning. Good Good Morning. 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 Good Good morning, sir. morning. Good morning. Good morning. Yes, Zakaria too, please. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning. Good Good morning, morning, Good all of everyone. you. morning. Good morning, Good everyone. morning. Good morning. Good morning. Yes, welcome all of you. It's sharp 7. Let's start. Please check your name, rename itself, and switch on your video. It is compulsory for everyone. Yes, so today we invite to Rakesh Sirpra. Rakesh, where are you? First I find. Yes, Rakesh is there. अजय Welcome, Rakesh. अजय Yes, अजय मैं एक्चुअली आई विल ज्वाइन आफ्टर 5 minutes. यू प्लीज कंटिन्यू. आप no स्टार्टिंग problem. सिर्फ 2-3 मिनट ले लो, मैं करता हूँ. No problem, no problem. Yes, so let's start. Yes, Jignesh, skin is visible. Yes. There is some black box is there on PPT. Now, Yeah, one remove, one is there. so please mute, unmute anyone. Okay, so please follow the rule. Keep note and pen with you. Keep your video always on and sit properly. Keep your sound mute until you are asked to speak. Raise your hand, virtual hand, if you have any question. Always complete your homework on time. So please take care. Last point. What is the intention of English club? Who will say? Yes, Jignesh. Yes, what is the Okay. intention of our English club? 1 minute. I unmute somebody's. Yes, Okay. Turusa. 1 minute. 1 minute. It is not unmuted. Yes, Turusa. To empower every individual by teaching him or her English. એટલે કે બધાને ઇંગ્લિશ શીખવાડીને પર્સનલી એમ્પાવર કરવા. Okay. Thank you. Why do you want to learn English? Today we give some new members chance. Right, Jignesh? Yes. So please choose anyone, Jignesh. Okay. I want to give chance. Where are you, Guru? Yes, Janvi. जानवी आप अनम्यूट कीजिए. Yes, I am ready. Yes, Janvi. Sir, I want to learn English because of my future. Okay. And Anything else, Janvi? Yes, thank you, Janvi. शायद वो सुन नहीं पा रही है. Yes, carry on, Rakesh sir. Okay. Over to you. Over to. Okay. Thank you, Jignesh, and sorry for joining late. Actually, I am not well today, so आपको थोड़ा एनर्जी कम लगे तो मेरे को माफ कर देना. Okay, next. Okay, so who is he? कौन बताएगा ये कौन है? One minute, Rakesh. I share again screen. It is little bit scary. या फोटो तो देख ही लिया है. प्लीज.
यस, हु इज ही? कौन बताएगा? यस, संजय पटेल. He is Chandrasekhar Azad. Okay, great. Anyone else? Good try. Yes, Vijaya Chudasama. Ram Prasad Bismillah. Sorry? Ram Prasad Bismillah. Ram Prasad Bismillah. Okay, next. Yes, Sanjay Golakia. Him, Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad. Okay, great. किसी ने भगत सिंह लिखा है. Okay, anyone else? Yes, Rajnikant. Bismillah. हसमुख भाई लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह. ओके, आजाद. ओके, चैट में लिखिए, कोई बात नहीं. भगत सिंह यशवी ने लिखा है. ग्रेट. आगे चंद्रशेखर आजाद. ओके, ग्रेट. चंद्रशेखर आजाद. ओके, राइट राइट. आजाद. ओके. राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां. ओके, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह. ओके, आजाद. ओके, लिखिए लिखिए, मजा आ रहा है मुझे. आजाद और आजाद. और ठीक है. तो भाविन कोठारी, थैंक यू. 82 नंबर. भाविन कोठारी, थैंक यू. भाविन ने सही नाम भी पहचाना और सही नाम लिखा भी. थैंक यू. जयमीन 45 नंबर. ये जो महान क्रांतिकारी है उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आज उनकी जन्म जयंती है. टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी. सो लेट्स रिमेंबर this great warrior, this great fighter who sacrificed his whole life to the country. देश को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. तो anyone wants to share something about Ram Prasad Bismil in English only? Raise your hand. Okay. Nobody raise hand. Rakesh, please share 2-3 lines about. Yes, Archana, I think raise hand. Ram Prasad Bismil was our freedom fighter Yes. in our country. Okay. Good, Archana. Thank you. So you are right. Ram Prasad Bismil was a freedom fighter. You can see he was born in 1987 and he was hanged till death in 1927. Means very short span of life, almost 40 years. And because of his participation in various anti-government or anti-British programs, he was punished to death. उनको फांसी हुई थी और 19 दिसंबर 1927 को उनका देहांत हुआ फांसी की वजह से. So he was Ram Prasad Bismil. Or then when someone spoke, when someone said that he was Ram Prasad Bismillah, then actually I liked it because Ram Prasad Bismil was the greatest example of Hindu-Muslim harmony, because his greatest friend and his best friend was Ashfaq Ullah Khan. Right? You must have seen the movie Rang De Basanti. इसमें ये दोनों कैरेक्टर है, वो जो ड्रामा वो लड़की प्ले करती है उसमें. So we must know these warriors and you must have seen that poem, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. That is written by Ram Prasad Bismil. Okay, great. Thank you. Let's रिमेंबर और उनको वंदन करते हैं. एनी क्वेश्चन अब तक जो सीखा है उसमें? यस, रजनीकांत. राकेश सर, मैं हर रोज जो आप सेंटेंस बनाने को देते हो तो मैं हर रोज बना के अपना असाइनमेंट ग्रुप में भेजता हूँ. लेकिन कुछ ना कुछ समझो कि 10 सेंटेंस बना तो उसमें कम से कम 5-6 सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है. कुछ
बनाता हूँ तो सेंटेंस में इधर का इधर हो जाता है, कुछ इधर पहले लिखना वो बाद में लिखा जाता है, वही ज्यादा प्रॉब्लम रहता है मुझे सेंटेंस बनाने में। ओके, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यह है कि आप अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए कि आपका सेंटेंस सही बनेगा या गलत बनेगा। आप एक सेंटेंस को सोचिए, उसको दिमाग में सोचिए कि मुझे ये एक्टिविटी पे सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे वैन का एक ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मैं जब उनकी शॉप पर गया तो वो दोनों बातें कर रहे थे, तो ये सेंटेंस मुझे बनाना है, राइट। तो उसको पहले दिमाग में उतार लीजिए कि ये सेंटेंस है, उसके भाव को पकड़ लीजिए, भाव को पकड़ने की कोशिश करिए कि क्या कहना क्या चाहता है सेंटेंस एग्जैक्टली। उसके बाद बनाने की ट्राई करिए, लेकिन उससे पहले ग्रामर को ठीक से समझ लीजिए, तो सेंटेंस आपको जवाब देगा। तो आपका इजीली आ जाएगा कि व्हेन आई रीच देयर शॉप दे वर टॉकिंग टू ईच अदर इजीली। ये मेरा सजेशन है, 2 दिन इसको ट्राई कर देखिए, ये सबके लिए है। फिर भी नहीं आता है तो हम कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है सर। और जो पैटर्न है ना, जो काल की जो ये कभी चालू भूतकाल, सादो भूतकाल, सादो वर्तमान काल, એમાં कंफ्यूज થઈ જાય છે कि उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये हम आप बोलते हैं कि आपकी तरफ से जो भी सेंटेंस लिखिए गुजराती में, ठीक है, मैं गुजराती में लिखता हूँ, तो बाद में उसका इंग्लिश लिखिए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये सादो वर्तमान काल सादो वर्तमान काल છે કે ચાલુ ભૂતકાળ છે કે સાદો ભવિષ્યકાળ છે, એ બનાવવામાં કારણે મિસ્ટેક થાય છે। देखिए रजनीकांत का जो क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन वो बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट है। और रजनी जी आपने जो दूसरा सवाल किया ना, उसके लिए मैं एक ही जवाब दूंगा, वो प्रैक्टिस है। वो डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, इसलिए मैं बार बार पढ़ने और सुनने को बोलता हूँ। अगर आपको टेंस डिफरेंशिएट करने में तकलीफ हो रही है तो आपको पढ़ना है, लेकिन डिफरेंशिएट कर पाते हो और बोल नहीं पाते हो तो फिर सुनना है। तो आप थोड़ा माय सजेशन है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हल्का ऐसे बहुत सारे बुक्स है, मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए है कि ऐसी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज है, बहुत सारी नॉवेल्स है जो गुजराती के साथ साथ गुजराती में वो बेस्ट सेलर हुई तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, राइट। तो आप पहले ये करिए कि आप गुजराती पढ़ लीजिए ताकि आप उसके भाव को समझ लें, बाद में उसको इंग्लिश में पढ़िए। सेम चीज आप मूवी में कर सकते हो। आपने लगाया हैरी पॉटर फर्स्ट पार्ट हिंदी में देख लिया, आपको सेंस समझ में आ गया, फिर उसको इंग्लिश में देखिए, क्योंकि आपको स्टोरी पता है, आपको सिर्फ सेंटेंस कैच करना है। तो ये 2 सजेशन है मेरे, आप करके देखिए, फिर आपके रिजल्ट सबके साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एनीवन? यस जेमिन, ने जो सवाल किए उसकी वजह से काफी लोगों को क्लियर हुई होगी। सर वैन का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं? फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन आज हमने नहीं लिया है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने नहीं लिया है। सिंपल जैसे यहाँ वैन यूज करते हैं वैसे वहां भी कर सकते हैं। कि जैसे मैं उनकी दुकान, जब मैं उनकी दुकान में जाऊंगा तब ये हो रहा होगा, तो वहाँ यहाँ जैसे सिंपल पास्ट यूज करते हैं वहाँ सिंपल फ्यूचर यूज कर लीजिए। ओके। और सर अगर मैं फ्यूचर का पूरा सेंटेंस बना दूं, जैसे कि जब मैं ऐसा करूंगा तब ऐसा हो सकता है, तो उसमें वैन का यूज हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना वो अलग चीज हो गई, वो मॉडल हो गया, वो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ना बाकी है। ओके। होगा वो अलग हमने पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है वो संभावना हो गई, वो फिर वो अलग है, वो टेंस नहीं है, वो फ्यूचर ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और यूज होता है, शैल विल यूज नहीं होता। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया कि आप ये पूछना चाहते हो कि जब प्रेजेंट में और पास्ट में हमने वैन यूज किया, हम फ्यूचर में कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से कर सकते हैं कि मैं जब उनकी शॉप पर जाऊंगा तब वे दोनों बातें कर रहे होंगे। तो व्हेन आई रीच और आई विल रीच दोनों सही है। व्हेन आई विल रीच देयर शॉप दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। सेम टू सेम पैटर्न जो हमने पास्ट में सीखा था, लेकिन टेंस सिर्फ डिफरेंस होगा। थोड़ा आज का टेंस सीख लीजिए, बाद में ये सवाल करना, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो टॉपिक है वो is future continuous tense. We have learned past and present continuous tense till date.
Okay, next. Before moving ahead, I need some answers from all of you. When do we use present continuous tense? Who will explain? Raise your hands. When do we use present continuous tense? Yes, Jyot. Hello, Yes. let's choose choice. Choose anyone. Yes. કોઈ Yes. કોઈ પણ કાર્ય અત્યારે એટલે કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું હોય એને દર્શાવવા માટે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ વપરાય છે. कोई भी एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट में हो रही है उसको बताने के लिए प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में वो एक्टिविटी चालू है. जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ चालू है. जैसे कि आपके आसपास अभी बहुत सारी चीजें चालू होगी, पंखा चालू होगा, पंछी उड़ रहे होंगे, पंछी बोल रहे होंगे, मम्मी काम कर रहे होंगे, राइट, आप पढ़ रहे हैं, कोई सो रहा है, तो ये सब चालू क्रिया है, राइट. उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है कि इस वक्त मतलब और कभी कहीं नहीं, ना आगे ना पीछे, इस वक्त क्या क्या चालू. ओके, गुड, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट. सॉरी, नेक्स्ट प्लीज. ओके, नाउ व्हेन डू वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? कौन बताएगा? यस, रजनीकांत. जो क्रिया दिखाने के लिए कि जो मैं वहां पहुंचा तभी वो चल रहा था. ओके, और कुछ ठीक से और कौन बताएगा? Yes, Sanjay Patel. At the particular point of time, the action is going on. Okay, in the past. हाँ, in the past. Okay. मतलब कि पास्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट का रेफरेंस पॉइंट क्या है? इस वक्त, अभी, इसी समय पे क्या हो रहा है. सेम पास्ट में दिखाना है तो पास्ट का रेफरेंस पॉइंट, पास्ट में उस पॉइंट पे क्या हो रहा था, 6 बजे, 7 बजे, कोई घटना हुई तब कुछ हो रहा था, तो वो घटना रेफरेंस बन गई, वो आधार बन गई. एट दैट टाइम कोई समय पे कुछ हुआ था, कुछ हो रहा था, मतलब चालू था, तो उसके लिए पास्ट. तो प्रेजेंट का रेफरेंस पॉइंट हो गया इस वक्त, पास्ट का रेफरेंस पॉइंट हो गया कोई टाइम पर, तो मतलब इतने बजे या ये हुआ तब ये हो रहा था. ओके, सो इसी बेस पर हम फ्यूचर टेंस सीखने जा रहे हैं. जैसे अब सिंपल है, देखो ये अगर आपने पकड़ लिया रेफरेंस पॉइंट तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बिना सिखाए आप सीख गए, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं. सेम टू सेम सारी चीजें उठा के आपको फ्यूचर में डाल देनी है कि फ्यूचर पे कोई रेफरेंस पॉइंट पर कुछ हो रहा होगा, कुछ 7 बजे कोई क्रिया शुरू होगी, 8 बजे कोई क्रिया शुरू होगी. हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम नहीं बोलते, कई बार हिंदी में या गुजराती में बोलते हैं, अरे भाई इस वक्त तो तू खाना खा रहा होगा. इस वक्त मतलब उनका, हमारा कहने का मतलब है अभी जो टाइम हुआ है उस टाइम पे तो खाना खा रहा होगा, कल या परसों या अगले साल. तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मतलब इस वक्त पे कल, इस वक्त पे परसों, इस वक्त पे अगले महीने, इस वक्त पे अगले साल. इस वक्त पे कुछ शुरू हुआ होगा, शुरू रहा होगा, मतलब शुरू होगा, चालू होगा, राइट. सिर्फ सारा जो कंटिन्यूअस टेंस है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, बाकी कोई डरने वाली कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अब आप, मैंने सिखा दिया, आप सीख गए, अब जो है वो प्रैक्टिस है. चलिए देख लेते हैं. नेक्स्ट. ओके, वो विल रीड. चलिए आज रीडिंग भी करते हैं. कौन रीड करेगा? We give some now member. Yes, Jagdish Kumar Jani. Hello. Yes. Future continuous tense sometimes also referred to as the future progressive tense is a verb tense that indicates that something will इसका मीनिंग will occur in the future and continues for an expected length of time. Great.
थोड़ा आपने बहुत अच्छे पढ़ा, लेकिन पंक्चुएशन मार्क को ठीक रखिए। मतलब कॉमा है तो ठहरना है, कॉमा नहीं है तो फिर बिना वजह नहीं ठहरना है। जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा ठीक करना है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बोला, अच्छा लगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कॉमा है। समटाइम्स आल्सो रेफर्ड, रेफर्ड बोलते हैं इसको, referred as the future progressive tense is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. अब इसका मीनिंग कौन मुझे बताएगा? अब सबको मीनिंग ढूंढना है। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, लीडर अपना काम कम करेंगे, आपको ज्यादा करना है। Please raise your hand. 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, अब 10th में अगर सबने आई थिंक एग्जाम दिया ही होगा, तो यहाँ सूरत में और गुजरात में कहावत है कि जैसे जून में वो सत्र शुरू होता है स्कूल का, और उसकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन वो मार्च अप्रैल में होते हैं, तो दिसंबर के बाद जो है वो स्टूडेंट है वो टीचर से आगे निकल जाता है। यहाँ पे कहावत है गुजराती में कि दिसंबर के बाद, दिसंबर પછી વિદ્યાર્થી હોય શિક્ષક કરતા સવાયો હોય, बिकॉज टीचर को एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, स्टूडेंट को जो है वो सारे सब्जेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स योर टर्न, आप भी उसी स्टेज पर जा रहे हैं कि अब आप बहुत कुछ सीख गए हैं, तो अब आपको सेल्फ लर्निंग भी करनी है। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास से आंसर मांग रहा हूँ, तो खोजिए इसका मीनिंग क्या है। यस संजय पटेल। हाँ, ભવિષ્યમાં કોઈ અમુક સમયે એ ક્રિયા ચાલુ હશે, પ્રોગ્રેસમાં હશે એવું બતાવવા માટે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો ઉપયોગ થાય. ઓકે, થોડું આને વ્યવસ્થિત કરીએ તો જોઈએ, ચાલો વાંધો નહીં. તો ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ સમટાઇમ્સ ઓલ્સો એટલે કેટલીક વાર પણ, એમ કેટલીક વાર કરવામાં આવે છે। શું કરવામાં આવે છે, क्या करना होता है, मतलब क्या होता है, तो समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब इस लाइन का मीनिंग यह है कि कई बार इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर भी इसको रेफर किया जाता है, इसको जाना जाता है, इसका परिचय दिया जाता है, राइट। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस वो क्या है? अब वो टेंस इज अ वर्ब टेंस, वो काल दर्शक के क्रियापद है जो समय दिखाता है। दैट इंडिकेट्स, वो क्या दिखाता है? समथिंग विल अकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ होगा, कुछ घटना घटेगी, और घटने के बाद क्या होगी? एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, कुछ मतलब आशा, मतलब समय है जो एक्सपेक्टेड है, मतलब ये होने वाला है, उसकी आशा है, तो थोड़े समय के लिए तो वो शुरू होगी। फिर कितने, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, ऐसा कोई भाषा में ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन वो हमारे दिमाग में होता है कि थोड़े समय तक तो चलेगी। ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए, राइट, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ आपकी थियोरेटिकल नॉलेज के लिए था, प्रैक्टिकल ही काम आएगा आगे। सेम देखिए, मैं सेंटेंस पैटर्न में बहुत नहीं जाता हूँ, लेकिन जब शुरू होता है तो थोड़ा देख लेना चाहिए। इसमें बाकी आगे पीछे देखिए, इंग्लिश जब तक पढ़ेंगे ना तब आगे पीछे सब सेम रहेगा, बीच जो वर्ब है, क्रियापद है, वहां पर ही चेंजेस होंगे। देखिए सब्जेक्ट उसी एज इट इज है, शैल बी आईएनजी आएगा, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड हुई है, वो है बी। शैल या विल प्लस बी प्लस आईएनजी, मतलब शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग, विल बी प्लेइंग, विल बी रनिंग, विल बी ईटिंग, विल बी कुकिंग, लाइक दैट। नेगेटिव आपको पता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं जो हमको नहीं करनी है, वो आप ध्यान से देख लीजिए कि बी है ऑलवेज नॉट के आगे आएगा, और या फिर शैल विल के पीछे नॉट आएगा। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आई विल बी नॉट प्लेइंग, तो ये गलत हो जाएगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी कुकिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी लर्निंग, आई विल नॉट बी टीचिंग। विल और शैल के बाद नॉट आएगा, ये याद रखना है। फिर इंटरोगेटिव में भी ये सेम चीज याद रखनी है कि बी को आईएनजी से अलग नहीं करना है, राइट। बी को आईएनजी से अलग नहीं करना है आपको। शैल मतलब क्या आप कुछ करेंगे फ्यूचर में, तो विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी रनिंग, विल यू बी ईटिंग, विल यू बी लाफिंग, ऐसा। WH क्वेश्चंस के सेंटेंस पैटर्न में
गलती है, आपको सुधार के मिल जाएगा। WH के बाद सेम है, जो इंट्रोगेटिव के आगे WH लगा दो तो WH बन गया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ा पीपीटी में गलती है। सब्जेक्ट पहले आएगा, बी बाद में आएगा, क्योंकि ING से बी को अलग नहीं कर सकते। हम इसको अभी प्रैक्टिस में करेक्ट कर लेते हैं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट। एक ही एग्जाम्पल को अश्विन सर ने जैसे बताया था वो उसी तरीके से एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से लिखा है। सो पहला है कि आई विल बी वॉचिंग टीवी। मेरा ऐसा उद्देश्य है कि ये 6 सेंटेंस में ही आप पूरा टेंस सीख जाओ, राइट। तो कल्पना करिए कि क्या होने वाला है, मतलब आप इस सेंटेंस, पहला एक घटना यह है कि मैं किसी को कुछ बता रहा, किसी ने मुझे पूछा है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ कल 9 बजे। किसी ने मुझे पूछा है, अब देखिए कि आप अपने लिविंग रूम में है या फिर अपने स्कूल में है, अपने ऑफिस में है, किसी ने आपको पूछा कि भाई कल 9 बजे क्या करने वाले हैं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि भाई मैं कल 9, मेरा फिक्स है, मैं कल 9 बजे टीवी देख रहा होगा। 9 बजे मेरी ये क्रिया शुरू होगी। जैसे फ्यूचर में अगर प्रेजेंट में शुरू है तो एट दिस पॉइंट, मतलब अभी शुरू है। पास्ट में थी तो भी रेफरेंस पॉइंट था कि 9 बजे टीवी देख रहा था, अभी टीवी देख रहा हूँ। सेम इसी तरह फ्यूचर में है कि 9 बजे टीवी देख रहा हूँ, 9 વાગે ટીવી જોઈ રહ્યો હોઈશ। तो आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो। देखिए पहला लेटर आई, वैसे भी आई तो कैपिटल में ही आएगा। विल बी वॉचिंग, इसी पे फोकस करिए, विल बी वॉचिंग टीवी। कब देख रहे होंगे? एट 9 PM टुमारो। सिंपल, क्लियर। अब मुझे इसमें नॉट लगाना है कि नहीं कर रहा हूँ, तो विल और विल के बाद ही नॉट आएगा। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। ओके, अब विल नॉट को शॉर्ट करना है, तो आई वॉन्ट बी वॉचिंग टीवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म। कई बार आप वांट सुनते हो ना, तो सुनने में आपको ऐसा लगता है कि वो वांट मतलब वो कहता है इच्छा करने वाला, कि मुझे कुछ चाहिए, वो वाला वांट है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखिए ये वांट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और जहां पे विल नॉट आएगा आप वहां पे वांट यूज कर सकते हैं। आई वांट बी वॉचिंग, और वांट ही ज्यादा यूज होता है इसलिए यहाँ पे लिया है। आई वांट बी वॉचिंग मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस। फोर्थ है वो इंट्रोगेटिव है, क्या मैं ये कर रहा हूँ। विल आई बी वॉचिंग, आपको सिर्फ 3 वर्ड आगे के देखने हैं, विल, आई और बी। उसका पैटर्न देख लीजिए। जैसे रजनीकांत जी पूछ रहे थे कि भाई मुझे सेंटेंस पैटर्न में दिक्कत आ रही है, आप कोई भी एक टेंस का सेंटेंस पैटर्न बाय हार्ट, दिल से उसको सीख लीजिए। याद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखने से कुछ नहीं होता है, आपको सारे के सारे सेंटेंस पैटर्न याद रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी। एक को दिल से सीख लीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न पे 12 के 12 टेंस है, सिर्फ उसमें वर्ब चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। इतना तो आप जान गए होंगे, ये 6 टेंस हम लोग सीख रहे हैं, सिर्फ वर्ब चेंज होता है, बाकी पैटर्न सेम है, कुछ याद रखने की जरूरत है, ठीक है। विल आई बी वॉचिंग टीवी, अब उसके आगे मैंने सिर्फ व्हाट लगा दिया और टीवी को हटा दिया। देखिए 5th सेंटेंस और 4th सेंटेंस का डिफरेंस देखिए, व्हाट लगा दिया है और टीवी हटा दिया है, और कोई मैंने चेंज नहीं किया है। अब आप अपनी देख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ। 4th और 5th में कोई डिफरेंस दिख रहा है? 4th व्हाट आगे लगाया है, टीवी हटा दिया, बाकी सेम है। तो मैं कल 9 बजे क्या देख रहा होऊंगा, व्हाट विल आई बी वॉचिंग। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सीधा बोल देते हैं व्हाट आई विल बी वॉचिंग, ये भी गलत है, ओके। या फिर ऐसा भी कई लोग बोल व्हाट आई विल बी वॉचिंग, व्हाट विल बी आई वॉचिंग, ये भी गलत है। व्हाट विल बी आई वॉचिंग ऐसा भी बोलते हैं, व्हाट आई विल बी वॉचिंग ऐसा भी बोलते हैं। तो ये दोनों नहीं करना है, व्हाट विल आई बी वॉचिंग ये सही है। सेम है व्हेन, तो मैंने पीछे से टाइम हटा दिया है, व्हेन विल आई बी वॉचिंग, कब देख रहा हूँ भाई, तो कल 9 बजे टुमारो, मतलब 9 बजे कल, ठीक है। तो ये था, बहुत इजी है क्योंकि आपने दोनों कंटिन्यूअस टेंस सीख लिए, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट है। चलिए नेक्स्ट। सेम पैटर्न, सेम सब कुछ, कुछ भी। एक काम करते हैं, हु इज टीचर, मतलब
बाय प्रोफेशन नहीं। कौन अंदर से ऐसा टीचर है जो ये फिफ्थ सेंटेंस एक्सप्लेन करेगा? चलिए, जिसको सिखाने का मन है आज की, भाई आज तो मुझे सिखाना है, ऐसे कोई आप वॉलंटरीली अपना हैंड रेस करिए, अपना हाथ खड़ा करिए, हम सब सीखेंगे। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इरेडिकेट योर फियर, जहां आप अपना डर है वो निर्मूल कर सकते हैं। प्लीज लाला भाई। हेलो, આવે છે અવાજ? यस, वी कैन हियर यू। હા, તો એક્ઝામ્પલ તરીકે પેલું છે ધ બેબી વિલ બી સ્લીપિંગ ધ આફ્ટરનૂન. ઓકે, તો બીજું સેન્ટેન્સ છે ધ બેબી વિલ નોટ બી સ્લીપિંગ ઇન ધ आफ्टरनून. इसको समझाना है हम सबको कि पहले सेंटेंस को हम क्या समझे, कैसे समझे, क्या करे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हम सबको सिखाइए। પહેલું આપણે પહેલું ટેન્શન એવું કહેવા માંગે છે બેબી વિલ બી સ્લીપિંગ, પછી બીજું એવું કે ઇન ધ આફ્ટરનૂન. બેબી શું કરી રહ્યું છે પેલા ટેન્શનમાં, એવી રીતે. હા, नहीं, શું क्या कर रहा है वो नहीं है, टीचर सीखना है। કારણ સમજાવો તમે, સમજાવીએ વાંધો। डोंट वरी, लेकिन आपने जो हैंड अपना रेस किया उसके लिए आई अप्रिशिएट, थैंक यू। ओके, और अब सीख लीजिए, अब आपका हम दूसरा साथी हमको सिखाएगा। चलिए, और कौन सिखाएगा? यस गोपी। यस गोपी, Yes, वाह। sir. This sentence is simple. Continue future tense. First sentence of the baby will be sleeping in the afternoon. કાલે બપોરના સમયે બેબી સૂતી રહી હશે. Next sentence, the baby will not be sleeping in the afternoon. अगर आप एक या दो लाइन भी एक्सप्लेन कर देंगे ना, मुझे डिटेल नहीं है तो मुझे लगेगा कि आपको आ गया और बाकी सबको भी लगेगा। पढ़ना है तो मैं ही पढ़ लूंगा ना। ओके सर। बेबी दोपहर के टाइम सो रही नहीं होगी, और उस टेंस का मतलब वही होता है कि कोई भी क्रिया फ्यूचर में मतलब चौकस टाइम पे होनी चाहिए कि मैं कल 6 o'clock के अहमदाबाद जाऊंगा। गुड, तो ये इसी तरह है, मतलब दोपहर को बेबी की ये क्रिया शुरू होगी, राइट? यस। ओके, गुड, ठीक है, आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। दूसरा सेंटेंस। दूसरा हो गया सर 3 नंबर का, द बेबी वांट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। मैडम, दूसरे में क्या डिफरेंस है हमको सबको तो बताइए। दूसरे में द बेबी विल नॉट, विल के बाद नॉट आता है, फिर मतलब बी आता है। तो ये मीनिंग में चेंज नहीं होगा कुछ? होगा ने, इसका नकार है और फर्स्ट नंबर का आकार है। वो हकार नकार थोड़ी मुझे समझ में आएगा, मीनिंग क्या बदला? कि वो नहीं सो रहा होगा। हाँ, तो वो बताइए ना हम सबको मैडम, हम तो अनपढ़ लोग हैं, आप ऐसे कैसे? बेबी दोपहर के टाइम पर सो रही नहीं होगी, नहीं सो रही होगी। ओके, ठीक है, ओके। अब तीसरे, द बेबी वांट टू बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। वो भी सेम ही है, सिर्फ वहां पे विल नॉट और यहाँ पे वांट टू लगाया है कि बेबी दोपहर के टाइम पर सो नहीं रही होगी। और फोर्थ नंबर, यस, विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। हमारा क्वेश्चन है कि आपने वांट क्यों लगाया थर्ड सेंटेंस में? वो मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब है, वो शॉर्ट फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो मीनिंग में कोई चेंज होगा दूसरे और तीसरे सेंटेंस में? नो, सेम ही मीनिंग होगा। सेम मीनिंग होगा, ठीक है। थैंक यू मैम। मतलब आर होते तो हम क्यों आरंट बोलते, इज होते तो इजंट, इसलिए विल नॉट होते तो वन। ओके, और फोर्थ नंबर का है विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। શું બેબી दोपहर के टाइम पर सो रही होगी? और व्हाट विल
What will the baby be doing in the afternoon? दोपहर के टाइम नहीं, बेबी क्या कर रही होगी दोपहर के टाइम में? वाह, बहुत अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर हमारे गोपी टीचर के लिए, बहुत बढ़िया आपने हम सबको पढ़ाया। तो ये 5 सेंटेंसेस है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से है, विल बी स्लीपिंग, सो रहा होगा, सो रही होगी बेबी, बच्चा। नहीं सो रहा होगा तो विल नॉट बी, उसका शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट बी। विल द बेबी बी और व्हाट विल द बेबी बी, यही है। बाकी सब तो आप लगा सकते हो, आपको जो चाहिए वो। ओके नेक्स्ट, 7:35। ओके नेक्स्ट, थोड़ा सेंटेंस को लॉन्ग किया है। यू विल बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम टुमारो। ओके, गोपी से भी तेज तरीके से थोड़े ही 2 मिनट में कौन ये एक्सप्लेन कर सकता है? वो अपने रेज हैंड को रेज करेंगे जल्दी से। સંજય પટેલ। હા, હવે આમાં આજ સમયે આવતીકાલે શું થશે, એટલે તમે લાઈવ શું કરતા હશો એ બતાવવા માટે છે। करेक्ट, क्योंकि बाकी सबको भी समझ में आए। હા, એટલે ભવિષ્યમાં આ સમયે શું ક્રિયા થતી હશે એ બતાવવા માટે છે। हिंदी सर, सॉरी, हाँ हिंदी में। इसी समय कल क्या हो रहा होगा वो बताने के लिए है। जिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है यू विल बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम टुमारो, मीन्स हाँ मीन्स आप इस समय कल लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, ऐसा बताना चाहते हैं इसमें। इसलिए हाँ, अब इसको अगर जो हम नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट लगाना है और ये नेगेटिव बन जाएगा। कहाँ लगाना है नॉट? हाँ, विल और बी के बीच में नॉट लगाना है ओके, और ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, और थर्ड सेंटेंस उसका शॉर्ट फॉर्म है। थोड़ा करेक्शन कर दूं, इस तरीके से मत याद रखिए, गलत याद हो जाएगा। विल और बी के बीच में नहीं, विल के बाद, इस तरीके से याद रखिए। कई बार विल और बी अलग अलग भी होते हैं। हाँ, ओके सर। हाँ, और जब इसको अगर जो क्वेश्चन में करना है क्वेश्चन, तो विल आगे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा। तो पढ़ के समझिए ना सर, 4 सेंटेंस। हाँ, विल यू बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम टुमारो। ओके, क्या मीनिंग है इसका? हाँ, कि क्या आप इस समय कल पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी में, ऐसा। गुड, वेरी गुड। और 5th वन है कि अगर जो WH क्वेश्चन लगाना है तो इसी जो 4th सेंटेंस है उसी में आगे यहाँ पे वेयर है तो वेयर आ जाएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ पे वेयर यानी प्लेस है, हम प्लेस पूछ रहे हैं, जो प्लेस दिखाता होगा जो वो निकल जाएगा। यहाँ पे इन द लाइब्रेरी है वो निकल जाएगा। ओके, वेयर मतलब उसका हिंदी में है कहाँ पे, तो कहाँ पे तो स्थान निकल जाएगा। ओके, प्लेस चला जाएगा। हाँ, ओके। तो वेयर विल यू बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ पे वेन भी लगा सकते हैं, वेन लगाते हैं तो फिर टुमारो निकल जाएगा, जो उस तरह से। ओके, वेयर वाले सेंटेंस का मीनिंग बोल दीजिए सर। सॉरी, हाँ, वेयर वाले सेंटेंस का मीनिंग। हाँ, ये ऐसा है कि आप इस समय कल कहाँ पे पढ़ रहे होंगे। वाओ, हाँ, सुपर्ब, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छे से समझाया सर ने। 5 सेंटेंसेस है। विल बी रीडिंग मतलब तुम कल है वो लाइब्रेरी में इसी वक्त पढ़ रहे होंगे, मतलब जब ये बात हो रही है तो जो भी टाइम है, कल भी ऐसा ही सूरज निकलने वाला है, कल भी यही वक्त होने वाला था, तो उस वक्त ये काम शुरू होगा आपका पढ़ने का। नहीं पढ़ रहे होंगे तो विल नॉट बी, शॉर्ट करेंगे वॉन्ट बी, यू वॉन्ट बी रीडिंग। आप नहीं पढ़ रहे हो, पूछना है कि कल कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे भाई, तो विल यू बी रीडिंग। और कहाँ पढ़ रहे होंगे तो प्लेस निकल जाएगा, सेंटेंस पैटर्न सेम। वेयर विल यू बी रीडिंग, कहाँ पढ़ रहे होंगे एट दिस टाइम टुमारो। ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, इतना 7:39 हो गया, तो ठीक है, ये प्रैक्टिस आप कर लेना पीपीटी को रेफर करके। ओके, नेक्स्ट होमवर्क है कि आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज करके। और एक नोटिस है, सूचना है, वी विल डू रिवीजन टुमारो, सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेस प्रॉपरली। हम कल रिवीजन ही है, सैटरडे है, तो रिवीजन आपको तभी
बेनिफिशियरी होगा, आपको तभी फायदा पहुंचाएगा जब आपको बेसिक पता होगा, वरना रिवीजन भी ऊपर से जाएगा। अभी बाय करने का टाइम नहीं हुआ है, नहीं करना है बाय जानवी, क्लास शुरू है अभी। ओके, मैंने देखा 6-7 लोग लेफ्ट हो गए, बहुत सारा काम बाकी है, नहीं जाना है। नेक्स्ट प्लीज। क्या आपको पता है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो कोई नहीं जाएगा। डू यू नो, क्या आपको पता है देयर आर 7 वेज, 7 तरीके हैं साउंड ई को एक्सप्लेन करना। मतलब ई डबल ई मतलब ऐसा नहीं, हम इंग्लिश में ई को किस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। ई अगर हमारे गले से निकला ई, तो ई को कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, उसके 7 तरीके हैं। वो तो ठीक है, वो टेक्निकल हो गया, हम तो यहाँ मजा करने के लिए आए हैं ये स्लाइड में। तो एक सेंटेंस है जिसमें ये सारे के सारे ई के उच्चारण एक ही सेंटेंस में आ गए। तो ही बिलीव्ड सीजर कुड सी पीपल सीजिंग द सीज। तो देखिए पहले में ई आया तो ई लगा कर आया, एच ई का ही में एच ह में ई हुआ तब ही हुआ ना, तो ई लगा कर आया। अब बिलीव में 3 ई है, देखिए बी के पीछे भी ई है, आई के पीछे भी ई है और वी के पीछे भी ई है, तीनों का मीनिंग सेम है। बी ई का मीनिंग है बी, लेकिन बिलीव में बी और ली, बी भी है और ली भी है, लेकिन बी की तरह ली नहीं हुआ, ली में आई लगा, LI। लेकिन वी के पीछे भी ई है, लेकिन उसका मीनिंग वी नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, बिलीव्ड, उसका वह हुआ। देखिए एक ही सेंटेंस में 3 ई, तीनों अलग अलग तरीके से, उच्चारण अलग है। अब आगे पढ़ते हैं। सीजर वो लिखा है ना, तो CAE को सी लिखा, देखिए इसमें भी ई आया, लेकिन AE का इस्तेमाल करके आया। कुड सी, यहाँ भी ई आया, लेकिन डबल ई होकर आया। ऊपर ही है, लेकिन वो एक ही ई में ही आ गया, यहाँ डबल ई करके आया। अब पीपल, देखिए यहाँ भी ई आया, लेकिन पी को कैसे बोलेंगे हम, PEOP। यहाँ भी अलग तरीके से, उच्चारण सेम, स्पेलिंग अलग। पल, पीपल, तो यहाँ LE है, उसमें भी ई है, लेकिन पल उसका मीनिंग हुआ। सीजिंग, देखिए ऊपर IE है, उसका भी ई हुआ, यहाँ EI है, उसका भी ई हुआ। सी जिंग, आई का भी ई उच्चारण हुआ, सीजिंग। द सीज, पिछले वाला सी है, उसका भी उच्चारण सी ही होगा, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है, SPH। तो ये थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा मजा आया ऐसा सेंटेंस था कि एक ही ई को ही बोलने के कितने तरीके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम ये जो इंग्लिश क्लब चला रहे हैं हम सब मिलकर, उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, कोई वक्त दे रहा है, कोई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, कोई अपना ज्ञान दे रहा है, कोई अपना पैसा खर्च कर रहा है, कोई अलग चीजें देकर, रिसोर्सेज देकर इसको, ये नोबेल कोज को, ये महान कार्य को चला रहे हैं। तो कल ही मुझे पता चला कि ये जो जूम हम ले रहे हैं, क्योंकि जूम में क्या होता है कि जो फ्री वर्जन होता है, मतलब उसमें हम ज्यादा फीचर्स नहीं इस्तेमाल कर पाते और 45 मिनट से आगे हम क्लास को नहीं कंटिन्यू कर पाते और लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को ही स्थान दे पाते हैं। तो इस बार हमारा गोल बड़ा था, तो हमने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम इस बार जूम का पेड वर्जन लेते हैं। तो इसके पीछे एक अमाउंट खर्च हुई है, वो हमारे अजय सर ने दी है वॉलंटियरली अपने जेब से इस नोबेल कोज के लिए। और जिग्नेश सर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे भी शक्ति सर ने, आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस बहुत जगह किए हैं। मुझे लगता है कि हम इन साथियों को भी, अजय सर के साथ साथ इन सब साथियों को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। जिग्नेश सर के बारे में मुझे पता है कि मेरे घर पे इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, सो क्लास लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो जिग्नेश सर ने अपनी जेब से 6000 रुपीज़ पे करके मेरे घर पर इंटरनेट लगवाया है, जिसकी वजह से मैं स्मूथली क्लास ले पाता। तो थैंक यू जिग्नेश सर, थैंक यू अजय सर। और जिग्नेश, मुझे पता है कि और भी लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सतीश सर ने ये जो जूम का जो फर्स्ट वर्जन है वो हमारे सतीश सर ने हमें दिलवाया, राइट। और उसका जो कॉस्ट है पहला वाला, हर महीने इसका चार्ज लगता है 5500 से 6000, आई डोंट नो। तो पहले सतीश सर ने उसको दिया, फिर उसका पेड भी उन्होंने किया, देन अजय सर ने पेड किया। तो ये सबका कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सतीश एंड अजय सर। ओके, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए था। बाकी जो लोग अपना, कुछ लोग अपना वक्त दे रहे हैं, दैट इज
इक्वली इम्पोर्टेंट, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे तारा मैम है, रोशन सर है, संजय सर है, अश्विन सर है, वो वक्त दे रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं, अपनी प्रतिभा है, अपना कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो इस काम में लगा रहे हैं। अगर मैं किसी के नाम मिस कर गया होगा तो माफ कर देना, ये सर मतलब ओवरऑल उसके लिए है, बाकी आप सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। थैंक यू वेरी मच। कल याद रखना आपको ठीक से रिवीजन करके आना है ताकि आप मेरा सर खा सको, ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। थैंक यू वेरी मच।